Hello students, today we will see again chapter number 9, problem number 7, page number 378. Into this problem number 7 we see the common size of balance sheets. The common size statement of balance sheets as on 31st March 2017 and 31st March 2018. Into this problem we prepare common size statements. The 2 years assets and liabilities are given into this common size statements. Previous year and current year assets and liabilities are given there. We prepare common size statement and the total percentage of that year 31st March 2017 and 31st March 2018, we calculate the changes in that year assets and liabilities. We see the source of funds and application funds, and total funds are utilized in our balance sheets. We applied in balance sheets. So we prepare first, we read the problem carefully. These are format, a solution आपका practical problem number 7, textbook page number 378. From the following balance sheet of Sakshi Traders for the year ended on 31st March 2017 to 31st March 2018. Liabilities, equity share, preference share, reserve surplus, secured loan, unsecured loan and current liabilities. Fixed assets, investment, current assets. Prepare common size statement. ये आपको एग्जाम में दिया जाता है. बैलेंस शीट आपको दिया जाए कहा जाता है प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट, प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. Into this problem number 7, we prepare common size of statements, common size of balance sheets. So comparison between assets and liabilities. This is our previous year. 31/3/17 जो आपका है 31st March 2017 is our previous year. It is called previous year. ये आपका previous year है. और 31st March 2018 ये आपका करंट ईयर है. इस बैलेंस शीट में आपका करंट ईयर चालू वर्षों से कहा जाता है. ये आपका प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर. फर्स्ट वी टेक द सोर्स ऑफ फंड्स. फर्स्ट वी टेकिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ओनर फंड्स, बोरोर फंड्स एंड टोटल फंड्स. नेटवर्थ आप कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद में एप्लीकेशन फंड जो आपके इन्वेस्ट फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स and then after current assets. Working capital आपको कैलकुलेट करना है और total funds applied in that year 2017-18. So we calculate first how to calculate the first point. We see the common size of statement. Sources of funds is given there. Sources of fund is our equity shares, preference shares and reserve fund. These are source of funds. That is called owner's funds. ये आपके owners के funds हैं. We calculate the owner funds. Then after borrower funds जो आपके हैं loans. Loan is our borrower funds. ये जो दो loans आपके पास है secured loan and unsecured loan. It is borrower loan. ये आपके कौन से loan है? Borrower loan है. ये दोनों को आपको प्लस करना है. टोटल फंड्स आपको कैलकुलेट करना है. उसके बाद में एप्लीकेशन फंड जो आपके हैं जिसमें फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ये दो एसेट्स जो आपके हैं फिक्स एंड करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स. ये एसेट्स आपको एप्लीकेशन फंड्स में आपको कैलकुलेट करना है. ए और बी करके आप टोटल फंड्स अप्लाई एंड इन दैट कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट. हाउ टू प्रिपेयर? सो प्रिपेयर फॉर पर्टिकुलर कॉलम 31st March 2017, 31st March 2018. 31st March 2017 का बैलेंस ये ईयर को कहते हैं प्रीवियस ईयर. ये आपका कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर है. और ये कौन सा ईयर है आपका? करंट ईयर, चालू वर्षों से पाया था. परसेंटेज टू द टोटल बैलेंस शीट 31st मार्च के आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है. द बेस ऑफ आवर फंड्स, नेटवर्क फंड्स एंड एप्लीकेशन फंड्स आपका बेस रहेगा. उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 31st मार्च का परसेंटेज 17 का और 31st मार्च 2018 का परसेंटेज ऑफ आवर बोरो फंड्स एंड परसेंटेज ऑफ आवर एप्लाइड फंड्स. हाउ टू कैलकुलेट दिस टू कॉलम्स? टू कॉलम इज ऑलरेडी गिवन. ये दो कॉलम आपको दिए हुए. Particular column we will see the details explanation about our
ओनर फंड्स एंड एप्लीकेशन फंड्स, इसका डिटेल्स आप लिखेंगे। पहले लायबिलिटी लेंगे सोर्स ऑफ फंड में, सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड ये आपको पहले लेना है। सोर्सेस ऑफ फंड आपके इसमें आपको लेना है बोरोड फंड्स, पहले आपके ओनर के फंड्स आपके होते हैं, उसके बाद में बोरोड फंड्स आपको लेना है। ओनर फंड्स कौन थे आपके, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस, ओनर्स फंड्स आपको इसको लगा तो फर्स्ट बोलेंगे, और सेकंड में आप कैलकुलेट करेंगे एप्लीकेशन फंड्स, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फंड्स आपको सेकंड में एसेट्स आपको कैलकुलेट करेंगे। पहले लायबिलिटी लेंगे, ऑल लायबिलिटीज बोरो ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स इज आर लायबिलिटीज, उसके बाद में एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड वी शुड कैलकुलेट टोटल फंड्स अप्लाइड इन दैट ईयर। So students, now start source of funds. Prepare common size of statement. फिर एग्जाम में आपको लिखना है कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ साक्षी ट्रेडर्स लिमिटेड, ऑफ साक्षी ट्रेडर्स लिमिटेड फॉर द ईयर ऑफ 31st March 2017, 31st March 2018 बैलेंस शीट ऑफ। सो प्रिपेयर कॉमन, हाउ टू प्रिपेयर द कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में ये दो कॉलम आपको इनका परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना, ये नया पॉइंट इसका अंदर है, बाकी कैलकुलेशन आपको एज इनका टोटल आपको खरीद करना है। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंजेस ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है कंपेरेटिव स्टेटमेंट के साथ, और परसेंटेज चेंजेस आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना। कैलकुलेट ओनली टू बी टोटल बैलेंस शीट परसेंटेज इन 31st March 2017 and 31st March 2018, how many percentage are changes into this liability and assets. So we put up the first sources of funds. Sources of funds आपको पहले लेना है, sources of funds, यहाँ का पहला हेडिंग रहेगा सोर्स ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड्स। प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर आपको दिया हुआ, ये आपका प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर का परसेंटेज आपका 31st March 2017 का प्रीवियस ईयर। ओनर फंड्स पहले आप कैलकुलेट करेंगे, ओनर फंड्स, ओनर फंड्स, ओनर फंड्स, ओनर फंड्स में आपको इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 एंड एज सेम 31st March 2018। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा लिखना है डिटेल्स में, खाली आपको प्लस करके जाना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 और 20,000, 20,000 20,000, 20,000 20,000। इसके बाद में आपको इसके टोटल करने के बाद आपका आएगा नेट वर्थ आपका आएगा। और एक फंड्स आपके रिजर्व फंड्स, प्लस करो रिजर्व फंड्स, ओनर फंड्स, रिजर्व फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना, रिजर्व एंड सरप्लस 20,000 एंड 24,000, 20,000 एंड 24,000। क्या किया आपने अभी ओनर्स फंड्स आपने दिए, ये ओनर्स फंड्स 80,000 80,000, प्रेफरेंस शेयर 20,000 20,000, रिजर्व सरप्लस 20,000 24,000, इसकी टोटल आपको करना। पहले कॉलम कंप्लीट करेंगे, बाद में परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इससे बोले नेटवर्थ आपका टोटल जो टोटल आया इसमें बोलना है नेटवर्थ। नेटवर्थ कितना था, देखो नेटवर्थ इसका टोटल आपका है, टोटल नेटवर्थ आपका है 1,20,000, 80 और 2 1 लाख 1 लाख और 1,20,000, 1,20,000। ये इधर 1,24,000, 80 और 20 1 लाख और 24,000, 1,24,000। क्या किया आपने, ओनर फंड्स आपने लिए, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स एंड सरप्लस, आपके ओनर फंड्स थे उसके टोटल दिए। उसके बाद में आपको लेना है सेकंड ओनर फंड्स के बाद में जो बोरोड फंड्स होते हैं वो बोरोड फंड्स आपको लेना है। बोरोड फंड्स होते हैं आपके सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। करंट लायबिलिटी आप वर्किंग कैपिटल में से माइनस करें। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो आपको वर्किंग कैपिटल का है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपका, करंट एसेट्स, राइट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपका फॉर्मूला है। करंट लायबिलिटीज आपका फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। ये जो आपका करंट लायबिलिटीज है आपकी 20,000 और 36,000, ये वर्किंग कैपिटल के वक्त आप माइनस करेंगे। फिर
ये जो दो लायबिलिटी आपकी बाकी है, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन, इज आवर बोरोड फंड्स। ये आपके बोरोड फंड्स है, बोरोड फंड्स। या इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। मेरे लिंक को शेयर कीजिए, आपको समझ में आएगा कि ओनर फंड्स और बोरोड फंड्स किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स, तो बोरोड फंड्स आपकी सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। ये सुरक्षित और असुरक्षित लोन्स कहा जाता है इसकी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन का अमाउंट लिखो कितना है, 40,000, 40,000, 40,000 और 16,000, 16,000। टेक्स्ट बुक सामने रखिए, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 378। अनसिक्योर्ड में 20,000 और 36,000, 20,000 और 36,000, 20,000, 36,000। इट इज आवर सिक्योर्ड लोन। ये आपका सिक्योर्ड लोन, इसी टोटल करो सेपरेटली, सिक्योर्ड लोन की टोटल करो सेपरेटली। 40 और 20 कितना होता है, 60,000। इसकी टोटल करना है, टोटल यानी बोरोड फंड की टोटल आप क्या करें, 60,000 और ये 412, ये 3 जोड़ लगा दो, ठीक रहेगा। 3, 4 और 1, 5, 52,000, 52,000। यहाँ बोरोड लोन का टोटल बोरोड फंड्स कितने आपके, 60,000 एंड 52,000। कैसा है, प्लस होगा, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन के आपने प्लस किए तो होगा आपका बोरोड लोन। एंड ओनर फंड्स कितने आपके, 1,20,000 और 2,00,000, 1,24,000, 1,24,000। 60,000 एंड 52,000 इज आवर बोरोड लोन्स। ये होगा आपके टोटल लोन्स, टोटल फंड्स, सिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड फंड्स में ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। इसके बाद में नंबर सेकंड इसको देंगे, अप्लाइड फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स आपका है ओनर फंड्स। इसके बाद में सोर्स के बाद में दूसरा फंड्स है आपका अप्लाइड फंड्स। आपके देखो एप्लीकेशन फंड्स उसे बोलते हैं। टोटल बोरोड फंड्स कितने हो गए, देखो फिर टोटल बोरोड फंड्स, टोटल बोरोड फंड्स, टोटल बोरोड फंड्स कितने हो गए आपके फिर अप्लाइड फंड्स। इसके बाद में क्या करते हैं, टोटल बोरोड फंड्स 1,20,000 और ये 60,000 कितने हो गए, 1,80,000, 1,24,000 और ये 52,000 कितने हो गए, 1,24 और 52, 1,76,000। ओके, टोटल बोरोड लॉस 1,20,000, 1,20,000 टोटल आपको निकालना है। ये जो टोटल फंड्स आपके हैं उसमें ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स के आपको टोटल करना है। 1+2 आप बोलेंगे, 1+2, 1+2 की टोटल करनी है अभी, 1 की और 2 की। 1+2 की आप टोटल यहाँ पे करना है और आपको लिखना है टोटल फंड्स 1+2, तो मेंशन करो 1+2, ये 1 कॉलम, ये 1 और ये 2, 1+2 की आप टोटल करेंगे 1,20,000 और 60,000, 1,20,000 और 60,000 कितना होगा, 1,80,000 का टोटल आपका 1,80,000 टोटल आपकी 1,80,000। और यहाँ पर 1,24,000 और ये 52,000, 1,24,000, 1,24,000 प्लस 52,000, इनका टोटल कितना आता है, 5, 4 और 6, 1,76,000, 1,76,000, 1,76,000 कैसे है, 1+2, ये 1 टोटल रेट आपका है 120 और टोटल आपका बोरोड लोन है 60, 120 प्लस 60 180, 124 प्लस 52 इज इक्वल टू 166। ये आपका टोटल, ये टोटल आपको लेना है, इसके टोटल ये प्लस ये दोनों का अपने प्लस थे, 120 प्लस 60 180 और वो 124 प्लस 52 166, 1,76,000। इनकी दोनों की क्या करना है, टोटल लेना है, प्लस करना है दोनों की टोटल ऑफ नेट फंड एंड टोटल ऑफ बोरोड लोन्स। इनकी दोनों की टोटल 1,80,000 और 1,76,000। इसके बाद में जो आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका बेस होगा सोर्सेस ऑफ फंड्स का, ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। एप्लीकेशन फंड जो आपके है, इसके बाद में टोटल फंड्स आपका होगा ये 1,80,000 और 1 लाख, इसका अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद में कैलकुलेट करना है आपको सेकंड एप्लीकेशन फंड, एप्लीकेशन फंड्स में आपको फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट है आपका फिक्स एसेट्स एंड सेकंड है आपका इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट्स 120 और 1,44,000, 1,20,000 और 1,44,000, 1,44,000। एंड इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट इज 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ये आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है 20,000। और बाद में ये करंट एसेट्स आपके करंट एसेट्स को फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपको वर्किंग कैपिटल करना है, इसकी टोटल करो पहले एक 20 और 20,000 की 1,20,000 और 20,000 1,40,000 1,40,000 1,40,000 और ये 1,64,000 44 और प्लस 4 64 1,64,000 1,60,000 ये आएगा 1,64,000 1,40,000 1,40,000 1,40,000 1,64,000 ये आपके टोटल आपकी अप्लाइड फंड्स की फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की दोनों की आपने टोटल की फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की दोनों की आपने टोटल की है वो आई आपकी 1,40,000 1,64,000 टोटल आ गई। यहां तक आपको समझ में ठीक है। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से आपको क्या करना है करंट लायबिलिटी आपको माइनस करना है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी कितने आपके 60,000 60,000 और 48,000 60,000 और 48,000 ये दोनों का आपको टोटल करना पड़ेगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये आपका फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स करंट एसेट्स कितने आपके करंट एसेट्स टोटल आपने जो कैलकुलेट करे हुए करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी आपको माइनस करना है। तो करंट एसेट्स आपके 60,000 करंट एसेट्स आपके और करंट लायबिलिटी आपके 20,000 60,000 20,000 जो आपके करंट एसेट्स आपको दी गई करंट एसेट्स आपके 60,000 करंट लायबिलिटी है 20,000 करंट एसेट्स आपके 48,000 करंट लायबिलिटी आपकी 60,000 ये तो आपकी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी ये आपकी करंट एसेट्स है 60,000 48,000 करंट लायबिलिटी क्या आपकी 20,000 36,000 ये आपका एसेट्स में से लायबिलिटी आपको माइनस करना है। एसेट कितने आपकी इस कॉलम की 2017 की एसेट्स कितनी आपकी 60,000 माइनस 20,000 रेड पेन से करंट एसेट लायबिलिटी लिखेंगे आप 20,000 और ब्लैक पेन से आप लिखेंगे 60,000 एसेट्स आपके 60,000 माइनस 20,000 एंड करंट आपकी 48,000 माइनस 36,000 48,000 माइनस 36,000 आपको माइनस 20,000 20,000 एज पर आवर टेबल ये 20,000 आपकी करंट लायबिलिटी 20,000 ये 20,000 और आपकी करंट लायबिलिटी 31/3/18 की है 36,000 36,000 इसमें डिफरेंस कितना आता है वो कैलकुलेट ये आपकी माइनस करना है आपका वर्किंग कैपिटल आएगा 60 में से 20 गए 40,000 और 48 में से 48,000 में से 36 गए 48 में से 36 ये कितना रहता है 8,000 ये कितना 36 और 4 40 40 और 8 12 18 से 12,000 रुपये आपके रहते हैं और यहाँ पे रहते हैं आपके 40,000 और 12,000 इज और वर्किंग कैपिटल 40,000 और 12,000 इज और वर्किंग कैपिटल 40,000 और 12,000। तो करंट एसेट्स कितने आपकी वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे 60,000 माइनस 20,000 40,000 ये आपका वर्किंग कैपिटल और 48,000 ये 12,000 आपका वर्किंग कैपिटल टोटल वर्किंग कैपिटल कितना आ गया आपका 40,000 12,000 टोटल वर्किंग कैपिटल 40,000 और 12,000 ये आपका टोटल वर्किंग कैपिटल है टोटल वर्किंग कैपिटल तीसरे का आंसर आपका टोटल वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है टोटल वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू आपका टोटल वर्किंग कैपिटल जो आपका है वो आपका 40,000 और 20,000 40,000 20,000 कैसा है 60 में से 20 गए 40 और 48 में से 36 गए 12 है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल आपका है 40,000 और 12,000। तो टोटल फंड्स जो अपडेट आपका है टोटल फंड्स आपको निकालना है यहाँ पे टोटल फंड्स अपडेट टोटल फंड्स लास्ट का आंसर जो टोटल फंड्स अपडेट टोटल फंड्स अपडेट आपको निकालना है। तो टोटल फंड्स अपडेट करने के लिए आपको टोटल फंड्स कितने देखो आपका टोटल
टोटल अपडेट कितने आपके 1,40,000 प्लस 40,000, 1,40,000 प्लस 40,000, टोटल फंड्स कितने हो गए आपके? ये 1,40,000 और ये 40,000, कितना होगा? 1,80,000 और 1,64,000 और 12,000, 1,64,000 और 12,000 टोटल फंड्स आपके निकालना है। टोटल फंड्स आपको कैलकुलेट करना है। टोटल फंड्स कितने आते हैं आपके? 64 और 12 और 66 और ये 10, 78, बराबर 1,76,000, 1,76,000, 64,000 प्लस ये 12,000 आपके टोटल वर्किंग फंड्स। इसमें टोटल के टोटल अप्लाइड फंड्स कितने आते आपके? 1,76,000, 1,76,000 आपके टोटल फंड्स आपके कैलकुलेट करना है। इसकी परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेशन करेंगे इसका टोटल फंड्स अपडेट, हाउ मेनी फंड्स आर परसेंटेज टू टोटल बैलेंसेस, आपके में परसेंटेज अपडेट करना है। तो इसका बेस जो है, इसका बेस जैसा एब्सोल्यूट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते क्या करते थे आपको? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल ऑफ एब्सोल्यूट चेंजेस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर्स इनटू 100, ये आपका बेस रहता था उसके ऊपर। और व्हेन द कॉमन साइड ऑफ स्टेटमेंट वी प्रिपेयर, द टोटल बेस जो आपका रहेगा फंड्स का रहेगा। ये जो फंड्स आपके हैं, ये फंड्स आपका टोटल बेस आपका रहेगा, टोटल फंड्स आपका बेस रहेगा और ये अमाउंट आपका रहेगा। इसका बेस, लाइबिलिटी का बेस रहेगा 120, बोरो का बेस रहेगा आपका 180 और बाद में 180, ये आपका बेस रहेगा। तो टेकिंग द टोटल बोरोड फंड्स, टोटल बोरोड फंड्स जो आपका है, टेकिंग द टोटल ऑफ बोरोड फंड्स, टोटल ऑफ बोरोड फंड्स की आपको टोटल, ये टेकिंग द टोटल ऑफ बोरोड फंड्स एंड टेकिंग द टोटल ऑफ एप्लीकेशन फंड्स। बोरोड फंड्स और एप्लीकेशन फंड्स ये आपका बेस रहेगा इनटू 100, बेस इज और 100 बेस आपको कैलकुलेट करना है। सो अप्लाइड फंड्स आपके 180 है आपके, उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। We see the details about next how to calculate the percentage of in our balances of our 31st March 2017, 31st March 2018। यह आपका कैलकुलेशन है कि आपने पूरे लायबिलिटीज लिए उसकी टोटल किए, इसमें पूरा टोटल करते हैं और वी शुड कैलकुलेट सोर्स ऑफ फंड्स, ओनर फंड्स, बोरोड फंड्स, एप्लीकेशन फंड्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। बाद में वर्किंग कैपिटल आपने कैलकुलेट किया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपने माइनस किए। करंट एसेट्स आपकी थी 60 में से 20 गया 40,000 और 48 में से 36 गए 12,000, ये आपका है टोटल वर्किंग कैपिटल। उसके बाद आपने टोटल फंड्स कैलकुलेट किए। टोटल फंड्स कैसे कैलकुलेट किए? आपने टोटल किए वर्किंग कैपिटल प्लस ये 1,40,000 और ये 40,000, कितना होगा? 1,80,000, 1,64,000 और 12,000, कितना होगा? ये दोनों के टोटल आपने किए तो टोटल आपका 1,76,000। ये दोनों के टोटल किए, आपके टोटल है 1,18,000। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज। ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो आपको जो बेस रहेगा वो बेस आपका 180 का आपका बेस रहेगा, विच विल कैलकुलेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ दैट फंड्स। तो पहला जो फंड्स आपका है विच विल कैलकुलेट 45 पॉइंट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। टोटल बेस 2070 आपका परसेंट, ये आपका 31 मार्च 2070 इसका बेस रहेगा। टोटल बोरोड फंड्स आपका रहेगा 180। तो इक्विटी शेयर्स का आप पहले कैलकुलेट, ये कॉलम आप पहले कैलकुलेट करेंगे, इसका ये कैलकुलेशन पहले करेंगे, बाद में ये कैलकुलेशन टोटल कैलकुलेशन आपको करना है। तो 80 इक्विटी शेयर्स आपको पहले देंगे। इक्विटी शेयर 31 कितना आपका 31 मार्च 2017, ये आपका ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है। ये कौन सा ईयर है? आपका प्रीवियस ईयर। कितना? 80,000। टोटल बेस ऑफ फंड्स आपको बोरोड फंड्स, बेस ऑफ बोरोड फंड्स, बेस ऑफ टोटल बोरोड फंड्स यानी आपको लेना है प्रीवियस ईयर। इसका फार्मूला जो आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज टू टोटल बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर, टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर या अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर बोलो से, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर इस साल का 31/3/2017 का अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल बोरोड फंड्स, टोटल बोरोड फंड्स, टोटल बोरोड फंड्स इनटू सभी को बेस आएगा 100, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो इक्विटी शेयर्स आपका पहले कैलकुलेट करें। इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेशन इज इक्वल टू कितना? इक्विटी शेयर्स 80,000
डिवाइड बॉरो फंड से आपका 1,80,000 इंटू 100, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। ये 4 जीरो और ये 4 जीरो कटोगे, कितना रहेगा 8 डिवाइड बाय 18 इंटू 100। 4 से इसको कट करो, 4 टू 8, 4 टू 8, 2 से कट करो, 2 से 2 से कट करेंगे, 4 टू 2 से कट करेंगे, 4 2 4 8, 2 9 18, यानी क्या रहता का 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, ये 4 ये 9 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 9 इंटू 100। 9 से डिवाइड करो इसको, 9 1 9, 9 1 9, एक रहेगा, ये 10 हो गए, अगेन 9 1 9, अगेन एक रहेगा, पॉइंट देखिए जुड़ लिया, 9 1 9, अगेन एक रहेगा, 9 1 9, 9 1 9, तो 11.11 इंटू ये 4, 11.11 इंटू 4, 4 4 4 4 4, यानी 3 स्टेप्स ऑफ कैलकुलेट करेंगे, 1 4 4 4, दैट इज 44.45, 44.45, 41.44 लिखे तो चलता है, 41.444, 41.444, 41.44, 44.444, 44.45 जाएगा आपका परसेंटेज। किस तरह कैलकुलेट किया आपने, टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये प्रीवियस ईयर का आपका 80,000, बेस है उसका 1,80,000, बेस ऑफ टोटल फंड्स आपको लेना है, टोटल बोरोड फंड्स का आपको बेस लेना है। टोटल बोरोड फंड्स कितने आपके 1,80,000, और आपका टोटल इक्विटी शेयर्स कितना का 80,000। सेम प्रेफरेंस शेयर का आपको करना है, यहाँ का समझ आपको प्रेफरेंस शेयर कर देंगे, यहाँ आपका इक्विटी शेयर्स का, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स आपका 30% 20,000, बेस आपका है 180, टोटल बोरोड फंड्स का आपको बेस लेना है, टोटल बोरोड फंड्स कितने 1,80,000 इंटू 100, ये आपका बेस फिगर है, ये 20,000 आपके 20,000, ये 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से ये करो, 2 1 2, 2 9 18, 100 डिवाइडेड बाय 9, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करो 9 से, 9 1 9, एक रहेगा, 9 1 9, बराबर है, एक रहेगा, 10 में से क्या वो 9 है, अगेन 10 होगा, 9 1 9, अगेन 9 1 रहेगा, 9 जाने के बाद अगेन ये 10 होगा, 9 1 9 9 1 9, यानी 11.11 ऐसा इसका कैलकुलेशन आएगा, इंटू कितना आएगा आपका 1.1111, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा 1.1, यानी 2 डिजिट का, दैट इज 1.11 इंटू 1 वही आएगा 1.111, दैट इज 11.11, इसका परसेंट आएगा 11.11। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन आपको करना है, नेक्स्ट देखते हैं, बेस है आपका रिजर्व सरप्लस 20,000, ये कॉलम आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर का कॉलम आपका चल रहा है 20,000 आपका बेस है, डिवाइडेड बाय 180 आपका 1,80,000 और इंटू 100, 2 ये 4 कट होगा, 2 9 80, 19, इसका कैलकुलेशन क्या रहता है, यहाँ पे 1 रहता है ऊपर, 9 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेगा, 9 से यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 रहता है, तो 9 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे 9 रहता है, 9 से आप कैलकुलेट करो, 9 1 9, एक रहेगा, ये 10 होगा, अगेन 9 1 9, एक रहेगा, पॉइंट देके जीरो लेके 9 1 9, अगेन एक रहेगा 9 1 9, यानी ये भी कितना आता है 1.111, 11.11, इसका कितना आएगा 11.11, दैट इज 11.11, इसका आपको टोटल करना है 11.11 प्लस 40, इसका टोटल करो पूरा 44.45, 11.11, 11.11, या इसका कंपेरिजन करो, 120 से डिवाइड करो, आंसर वही आपका आएगा। टोटल क्या चलता है 5 6 7 4 5 6 4 5 6, पॉइंट को पॉइंट दे दो, 4 5 6 66.67, ये होगा आपका 31 मार्च 2017 का परसेंटेज। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, इसका बेस रहेगा 180 आएगा,
सिक्योर्ड लोन, आपका लोन कौन सा चल रहा है अभी? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन 31 मार्च 2017 का, 31 मार्च 2017 का सिक्योर्ड लोन कितना आपका? 40,000। इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, 40,000 आपको कैलकुलेट करना है। 40,000 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर कितना आपका सिक्योर्ड लोन का? 40,000। बेस आपको लेना है 180 इंटू 100, ये 4 और 4 कट हो गए, इसे डिवाइड करो 4 2 से करो, 2 to the 4, 2 9 is 18 and 2 divided by 9 into 10 100, 9 से इसको डिवाइड करो, 9 1 जा 9, एक रहेगा 9 1 जा 9.111, तो आपका आएगा 2.2 into 11.1111, तो 11.1111 111 into 2 मल्टीप्लाई करो 2 से, ये 2.22 2.22 that is 2.2, that is 22.22 22.22 आपका है, लिखो 22.22 यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा, ये परसेंटेज होगा। ये बेस है आपका 20,000 और आपका बारो फंड्स का आपको बेस लेना है डिवाइडेड बाय बारो फंड्स। सेकंड है आपका अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन है आपका अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन आपके कितना आपका? 20,000 डिवाइडेड बाय बेस आपका है 180,000, बारो लोन का आपको बेस लेना है 80,000 इंटू 100, 1 2 3 4, ये 4 जीरो कट हो गए, 2 3 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी आपका क्या रहेगा? 19 इंटू 100, ये 1 रहेगा, ये 9 रहेगा इंटू 100, यहाँ पे बेस 1 रहता है, 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, अगर ये 10 होगा 9 1 जा 9, 11.1111, दैट इज 11.11%, 11.11%, 11.11%। इसकी टोटल करो 3 3 पॉइंट को पॉइंट दो 33.33। अभी बेस आपका 180 है और 1,76,000 आपका, ये कॉलम आप कैलकुलेट करेंगे। अभी इस कॉलम का आपको कैलकुलेट करना है बेस के ऊपर। 180 का आपको कैलकुलेट 180 आपका होगा, 180 का कैलकुलेशन कितना होगा? देखो 180 ये क्या होगा? ऑटोमेटिकली 100 हो जाता है। बोरो लोन कितना आपको? ये कॉलम चल रहा है अभी 180 का, 1,80,000 डिवाइड बाय 1,80,000। टोटल फंड्स आपके, टोटल बोरो फंड्स कितने? 1,80,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3, यानी 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, यानी कितना होगा आपका? 100%। क्या होगा? 100% होता है, 100%, ये 100% आपका 100%। ओके, आया समझ में? 1,80,000 आपका प्रीवियस ईयर का आपका 1,80,000 है और बोरोड फंड्स आपके 1,80,000 है इंटू 100, यानी 100% आपका क्या होगा? टोटल परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट ऑफ 100%। ओके, ये भी आपका 100% होना चाहिए, ये आपका टैली आपका हो जाएगा। अभी देखते हैं ये कॉलम पर, इसका 120 आपका बेस है, 1,20,000, इसका कैलकुलेशन करो सेम एज इट इज। 1,20,000 आपका बेस है, 1,20,000, ये आपका सिक्योर्ड लोन का आपका होगा। इसके बाद में लेना आपका फिक्स्ड एसेट्स 31 मार्च 2017 की, 31 मार्च 2017 के एसेट्स आपके 1,20,000। इसका बेस है आपका 1,80,000 इंटू 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 डिवाइडेड बाई 18, 12 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन करो, 2 से कम करो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ओके, 3 से कम करो, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, 100 से 100, 3 से 100 को डिवाइड करो, 3 9 जा 9, 3 3 जा 9, 1 रहेगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, पॉइंट देखिए आप, एक रहेगा 0 हो गया, अगेन 3 3 जा 9, 3 जा 99.99 इंटू 2, इंटू आपका कितना होगा? 2 रहेगा इंटू 2, 9 2 जा 18, 8 9 2 जा 19, 9 2 जा 18, कितना आता है? 93 पॉइंट कितना आ गया? 100% आपका सेक्योर्ड लोन का आएगा। 120 का कैलकुलेशन करो, वो आएगा 66.67।
इसका जो आपका कैलकुलेशन आएगा 66.67 द बेस ऑफ आवर, इसका आएगा 66.66 और 11.11 इसका सेम है 11.11 66.62%। टोटल करो 3 7 7 77.73 जो आपका कैलकुलेशन आपका आएगा टोटल बेस आपका। टोटल बेस आपका 140 और 180 आपका बेस है, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा 77.73%। तो टोटल अभी निकालना है करंट वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का आपको कैलकुलेशन अभी करना है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माने करंट, इसका वर्किंग कैपिटल इसी कैलकुलेशन की जरूरत, कैलकुलेशन करना की जरूरत नहीं। खाली इसमें कैलकुलेट द सेकंड कॉलम। बेस आपका रहेगा 180, आपको चल रहा है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का करके बेस आपका 80,000। पहले आपका इक्विटी शेयर आपका 80,000 डिवाइड बाय बेस आपका है, बेस आपको लेना है इस कॉलम का 31 मार्च 2018 का बेस क्या है 1,76,000 इंटू बेस 100 123 रहेगा आपका 80 डिवाइड बाय 166 इंटू 100। इनका कैलकुलेशन करो। कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है। 80 डिवाइड बाय 160 ये आपका बेस है। पहला लिया आपको 31 मार्च 2018 का 80,000 बेस है, उसका टोटल बोरोड फंड्स 1,76,000 इंटू टोटल बोरोड फंड्स कितना का 31 मार्च 2018 का 31 मार्च 2018 का बोरोड फंड्स आपका 1,76,000। 31 मार्च 2017 का कितना था पहले 180 आपने डिवाइड बाय 180 यहाँ पर लिए थे। यहाँ पर आपका फिगर चेंज हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च 2018 और टोटल बोरोड फंड्स इज 1,76,000। तो 1,76,000 यहाँ पे बेस रहेगा आपका इंटू 100 आपका बेस रहेगा। खाली आपके चेंज होगा ऊपर का डिजिट आपका चेंज होगा 180 की जगह आएगा वो 20,000 डिवाइड बाय 166,000, 24,000 डिवाइड बाय 1,76,000 इंटू 100 और आपका कैलकुलेशन है 80 डिवाइड बाय 1,76,000। ये 3 जीरो कट हो गए, रहेगा 80 डिवाइड बाय 176 इंटू 100। हाउ मेनी परसेंटेज विल कैलकुलेट नाउ? कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसको कैलकुलेट करो 800 या 80 इंटू 100 8,000 डिवाइड बाय 160 8,000 डिवाइड बाय 176 इसका कैलकुलेशन करो या इसको कम करो, आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए। कैलकुलेट करो कितना आता है देखो पहले राउंड का 45.45% इसका आएगा 45.45% इसका बेस रहेगा। अभी इक्विटी वाले प्रेफरेंस शेयर का बेस है 20,000, यहाँ पे आपका 20,000 आएगा 20,000 इंटू 100 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 76,000 डिवाइड बाय 76,000 आपका बोरोड कैपिटल आपका 76,000 है डिवाइड बाय 76,000 आपको लेना है 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे रहेगा 20 डिवाइड बाय 176 डिवाइड इंटू 100। तो 20 से इसको डिवाइड करो, इसको कम करो, आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसका आंसर होता है 11.36%, 11.36%, 11.36% यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा। इसका बेस है 24,000, बेस है आपका अमाउंट ऑफ बोरोड फंड्स आपको लेना है यहाँ पे। तो टोटल करंट ईयर आपको यहाँ पे करंट ईयर आपको लेना है। करंट ईयर कौन सा चल रहा है आपका 24,000, अमाउंट ऑफ करंट ईयर आपका 24,000 डिवाइड बाय बेस आपको लेना है 176,000 क्योंकि आपका साल कौन सा चल रहा है 31 मार्च 2018 यानी आपका करंट ईयर चल रहा है। ये करंट ईयर कैलकुलेशन आपका है। ये फिगर लेते तो उसका बेस कौन सा लेना है बोरोड फंड्स का बेस लेना है 1,76,000 डिवाइड बाय 100। ये 3 हो गया, रहेगा 24 डिवाइड बाय 176 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन करो। कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, रफ में कैलकुलेट करो, इसलिए वर्किंग नोट आपको एग्जाम में बहुत जरूरी है अपनी कैलकुलेशन करने के लिए। 24 डिवाइड बाय 166 इंटू 100 इसका कैलकुलेशन स्कोर कितना आता देखो 13.64 13.64 टाइप का आपका आना चाहिए 13.64 इसकी टोटल करो 4 4 15 5 एक रहेगा 10 13 14 एक रहेगा पॉइंट देगा 5 और 3 8 9 10 एक रहेगा 4 5 6 और 1 7 70.45% सबका में कैलकुलेशन होगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है सेम बोरोड फंड्स का आपका 16,000 आपका टोटल करंट ईयर का 16,000 आपका है और बेस आपका 1,76,000 इंटू 100। ये 3 और 3 कट हो गए 16 डिवाइड बाय 176 इंटू 100। 16 से इसको डिवाइड करो 176 को या 176 से या इसको इन शॉर्ट 16 इंटू 100 कितना आता है 1600
1600 इंटू 176, इसका कैलकुलेशन करो, ये आपका आंसर आएगा। 1600 को 176 से डिवाइड करो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 176 टू कितना था देखो, कितना आएगा देखो, आप कैलकुलेशन करो, 9.09, 9.09% आपका आंसर, इसका कैलकुलेशन 9.09% आपका आएगा। सेम आपका नेक्स्ट पॉइंट आपको देखेंगे, नेक्स्ट आपका 36,000, टोटल अमाउंट ऑफ करंट ईयर आपका है 36,000 डिवाइडेड बाय 166, या ये कॉलम पर चल रहा है, उसका बेस रहेगा आपका 176, पहले कॉलम का बेस था आपका 180, यहाँ पे 176, 1,76,000 इंटू 100, ये 3 करोगे, 36 डिवाइड बाय 176 इंटू 100, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे डिवाइड बाय 1 रहता है, 36 इंटू 100 3600, 3600 डिवाइड बाय 176, इसका कैलकुलेशन करो कितना आता है। 3600 को 176 से भाग दो, डिवाइड करो इससे, तो कितना आएगा आपको, 20.46, 20.46, 20.46, 46%। इसकी टोटल करो, 29 पॉइंट कितना आता है, 29.55, 20 और 29.55% आता है। ये टोटल करना है, 9 और 6 15, 1 रहेगा, 4 1 5 9 2 29.65, इसका 100% आता है। ये 100%, 100% किस तरह आता है, बोरो फंड का बेस आपका अमाउंट ऑफ करंट ईयर आपका है 1,76,000, और बेस टोटल ऑफ बोरो फंड्स कितने आपके, उतने 1,76,000 आ गए, इंटू 100, ये कट होगा, कितना रहेगा आपका 100%, ये आपका 100% आएगा। टोटल परसेंटेज आपका ये रहेगा, ये 100%। यहाँ पे वही करना आपका बेस 1,64,000 आपका बेस है, 144 और 160, इसका बेस पकड़ो कितना आता देखो, 81.82, इसका बेस कितना आपका 1,64,000, 1,44,000, 1,64,000, 1,64,000, ये आपका बेस टोटल आपका 1,76,000 इंटू 100, ये 3 कट होगा, 144 डिवाइड बाय 176 इंटू 100, इसकी कैलकुलेशन करो, यहाँ पे आपका आएगा परसेंटेज मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आएगा आपका 11.36, इसकी टोटल करो, 6 और 2 8, 8 9 10 11, 1 रहेगा 3, 93.18%, ये आपका कैलकुलेशन आता है। तो टोटल जो आपका फंड्स अप्लाइड है 1,80,000 एंड 1,76,000, इज आवर टोटल फंड। दिस इज कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट, इस तरह आपको प्रिपेयर करना है, कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है, तो ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ता है। पहला पर्टिकुलर अमाउंट करंट ईयर प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का आपको परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। तो बेस ईयर जो आपका रहेगा, बोरो फंड जो आपके, ये बोरो फंड्स आपका बेस रहेगा 1,80,000 और 1,76,000, ये बेस आपको, ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको काम है। जो परसेंट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले इसके लिए ये बेस रहेगा 180 बेस, ये पहले कॉलम के लिए रहेगा, और 176,000 डिवाइड बाय जो बेस आपका रहेगा टोटल बोरो फंड्स कितने रहेगा आपके, पहले इसके लिए 180,000, 1,80,000, और सेकंड रो के लिए करंट ईयर के लिए आपका रहेगा 1,76,000, आपका डिवाइडर रहेगा इंटू 100 के 100 आपका रहेगा इंटू 100, अमाउंट ऑफ करंट ईयर का अमाउंट आपको यहाँ लिखेंगे, और उसका बेस रहेगा 180, और इस कॉलम के लिए रहेगा आपका 1,76,000। वी शुड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परसेंटेज इन और बैलेंस शीट्स, टोटल परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट में इस तरह आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 378। स्टूडेंट्स रुकते हैं यहाँ, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 8, सेम है, कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट, आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट्स आपको प्रिपेयर करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 में। तो ठीक है, रुकते हैं यहाँ, थैंक यू।